Namaste and welcome. In our program Yoga for Unity and Wellbeing, 100 days towards the International Day of Yoga, the Sundays we have special messages from yoga masters from around the world. This week we have messages from two of them. Shri O.P. Tiwari ji, General Secretary of the Kaivalya Dham Institute of Lonavala, India, and Dr. Acharya Lokesh Muni ji, who is the founder and director of the Ahimsa Vishwa Bharati. Shri O.P. Tiwari ji has spent 50 years working, researching and teaching yoga as a therapy. He learned from his guru, Swami Kaivalyananda ji, who was the pioneer of scientific research in yoga therapy with the Kaivalya Dham Institute that he founded. His message is brief, but very significant. We have with us also Dr. Acharya Lokesh Muni ji. He belongs to the Jain faith and has spent his life traveling around the world, sometimes on foot as a Jain monk, working for peace and non-violence, which is known as Ahimsa in India. His dedication to this Jain faith, which is based on the principles of non-violence taken to the extreme, are so powerful and significant today. We even ask him why is he wearing a mask, which Jain monks generally do as a tradition. Let us listen to both of them and learn from them today. Namaste and welcome. So I am supposed to speak few words about the International Day of Yoga. Let me first congratulate our Prime Minister, Shri Modi ji, who owns all the credit to bring yoga in the international platform through UNO. Though the yoga is a very, very old Indian heritage, a strong cultural heritage, but as you know, thousands of years it was a active part of Indian culture. Later on, India has gone through many ups and downs, and yoga became was camouflaged. Though you know in the beginning, yamas and niyamas was the part of her Gurukul education. And with those, a definite discipline was maintained throughout India. People knew what to do, what not to do, how to behave, how not to behave. But that part was gone. Later on, as a part of yoga, the asana came the important phenomena. But also, asana, pranayam, pratyahar, dharana, dhyan and samadhi. Ashtanga yoga became Shadanga yoga. It was a dilution of our culture. They wanted the yoga should completely abolished, but the credit goes to an institution like Kaivalya Dham, which started scientific researches since 1924. Swami Kaivalyananda thought, why should we prove the scientific aspect of our yoga activity, how they are beneficial? Established the Kaivalya Dham. But his work, very, very important scientific aspect of yoga, was acknowledged in the international scientific world. He starting the
magazine Yoga Mimamsa, where those researches were published. And now today, the people know the importance of asana, pranayama, etc. And it has been introduced in the many universities, in international also. Many countries have adopted, and it is the whole world now knows about the yoga. But we should be careful that yoga should not get limited only with the asanas, because yoga is a full way of life. Yoga teaches us how to lead life. Yoga teaches us what is most important, and there the importance of yamas and niyamas also to be brought into practice. Society will change. It will help society to gain the same status as it used to be in India. As you know, today, the violence has become one of the characteristics of the people in every nation. While the yoga teaches you that you don't gain anything by violence, even don't have the attitude of violence in you. Think of your behavior should be based on the non-violence. It should be based on love. You can imagine if all the nations of the world, without giving any tag to this discipline, which is yoga, because it is the most secular practice of the life, which only teaches you how to lead a good life. And that is why Swami Kovalyananda said, yoga has a complete message for humanity. It has a message for the human body, it has a message for the human mind, and also it has a message for the human soul. Let young people come forward to carry this message, not only in India, but every corner of the world. Today it is happening. Though it is happening after he started the institute in 1924, now the UN has passed the resolution about yoga. And all the countries are now starting practicing it, because it is almost secular discipline of life. I wish that we should do whatever we can do. You should be example for yoga. You yourself should feel, you should practice, feel and change. Yoga brings a transformation in your personality. It doesn't only speak, but it does. So, as the Yamas says, try base on your life pattern on love, on non-violence. How important it will be if all of us start behaving with that attitude. Today, so many judiciary centers, Nyayalaya, are there just to settle the cases which are mostly either based on the violence or the lying. Yoga teaches us, try to stick to the truth speaking. If it happens in our society that everyone respects the truth, what will be the condition of the society? Also, we should not claim other things which do not belong to us.
It is called non-stealing. In our life, we don't care. And yoga says, don't think of it. Don't you do, don't get it done, or don't approve if someone has done the lying and stealing. Fourth thing is brahmacharya. It will need time to explain nicely, but it is also misunderstood. And fourth very good thing from economy point of view is non-hoarding. Generally, we do not differentiate the difference between need and the desires. Desires wants many, needs want few. Things which are needed, you should have in your home, in your pocket, everywhere. But things which are not needed, they are only the part of your desire. Don't go after them. They should not have preference. They should have second preference. First, base your life on your needs. So, this is the first part which is called yamas. And I wish one day it becomes part of our education, part of our basic education. So the child from the beginning knows what is the importance of these yamas. Secular does not mean that be away from the required necessary teaching. Whatever is needed, these things are needed. They don't have any color of any religion. And I wish that one day it will happen that our education system from the primary education, basic education to the top will have importance of such behavior. And I am sure that this message not only should be spread, but should be practiced. That is what is needed in India today. India, our Prime Minister, worthy Prime Minister, is doing all this. He is emphasizing, he is an example of all this. And we should also try to follow him. I am sure that the International Day of Yoga will be celebrated very nicely with the heart, with the love, with the respect to the yoga. Thank you very much. योगा इंटरनेशनल डे के उपलक्ष्य में 100 दिन के इस कार्यक्रम में जो दाजी के मार्गदर्शन में आयुष मंत्रालय, यूनाइटेड नेशंस, पातंजलि योगपीठ, योग ऋषि बाबा रामदेव जी, डॉक्टर एच.आर. नगेंद्र जी और खासकर दाजी का ये मार्गदर्शन रहा कि इंटरनेशनल योगा डे केवल एक दिन के लिए नहीं, 100 दिन का ये कार्यक्रम और उसके माध्यम से अलग अलग दृष्टिकोण से अलग अलग धर्मों के और योग क्षेत्र में काम करने वाले विशिष्ट लोगों को इस कार्यक्रम में प्रस्तुत किया जाए। और आज मुझे अहिंसा योग और मेडिटेशन सेंटर, जो कि अहिंसा विश्व भारती का एक उपक्रम है, और चूंकि मैं जैन सन्यासी हूं, तो जैनिज्म में अहिंसा का बहुत बड़ा महत्व है। और अहिंसा का जैनिज्म में जो सूक्ष्म चिंतन हुआ, उसके अनुसार केवल किसी को मारना ही नहीं, किसी के प्रति मनसा वाचा कर्मणा
अनिष्ट की कामना करना भी जो है वो हिंसा की कोटि में है। सरल भाषा में मैं कहूं, अपने अस्तित्व की तरह दूसरों के अस्तित्व को स्वीकार करना, अपने विचारों की तरह दूसरों के विचारों का आदर करना, और यहीं से अहिंसा धर्म का शुभारंभ। और इसलिए भगवान महावीर ने कहा, आय तुले पयासु, अपनी आत्मा के तुल्य अन्य सभी आत्माओं को स्वीकार करना, और जैसी चेतना मेरे भीतर प्रवाहित है वैसी ही चेतना न केवल इंसान में बल्कि वनस्पति के अंदर भी। और इसलिए महावीर ने अहिंसा का दर्शन प्रस्तुत करते हुए उन्होंने षट जीव निकाय की मौलिक प्रस्थापना की। पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय और त्रस काय। सरल शब्दों में कहूं तो उन्होंने कहा कि पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, इनका भी हम अनावश्यक उपयोग न करें। मैं समझता हूं उनका यह अहिंसा का मार्गदर्शन आज ग्लोबल वार्मिंग के संदर्भ में, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में एक बहुत बड़ा समाधान देता है, क्योंकि पदार्थ सीमित है, इच्छाएं और आकांक्षाएं असीम है। भगवान महावीर ने अहिंसा का दर्शन देते हुए कहा कि सीमित पदार्थ असीम इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर सकते, इसलिए हम अपने भोग और उपभोग का सीमाकरण करें। योग के संदर्भ में, मेडिटेशन के संदर्भ में बहुत मौलिक रूप से, और उन्होंने बड़ा बल दिया जैन दर्शन में, खासकर जैन धर्मावलंबियों में सबसे बड़ा आकर्षण होता है मुक्ति का, मोक्ष का, निर्वाण का। और तीर्थंकर महावीर ने मुक्ति का जो मार्ग बताया उसके अंदर तपस्या और उस तपस्या के 12 प्रकारों का विधान किया गया। अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काया कलेश, प्रतिसलिनता, प्रायश्चित, विनय, व्यावृत्य, स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्सर्ग। आप देखिए, तलटी से लेकर के शिखर तक की यात्रा, मोक्ष की, निर्वाण की, मुक्ति की शुभारंभ अनशन से हुआ, उपवास से हुआ। और उपवास का भी वास्तविक अर्थ केवल निराहार रहना ही नहीं, अपनी आत्मा के निकट निवास करना, इट मीन्स उपवास। मेडिटेशन की भाषा में अगर मैं कहूं, हमारे शरीर में 2 प्रकार के केंद्र हैं, एक नाभि के ऊपर और दूसरे में नाभि से नीचे। जब जब हमारी चेतना ऊपर के केंद्रों में निवास करती है, इट मीन्स उपवास घटित होता है। तो अनशन से उन्होंने शुरू करके इसको 2 भागों में भी बांटा। निर्जरा के 12 भेद कहा जाता है, तपस्या के 12 भेद इन्हें कहा जाता है, और कहा कि तपसा कर्म विच्छेदोदात्म नैर्मल्यम निर्जरा, कि तपस्या वो जिससे आत्मा की निर्मलता, पवित्रता, उज्जवलता और आत्मा कर्म रज से मुक्त होती है। उस तपस्या के 12 प्रकार में प्रथम सोपान अनशन उपवास है, और आखिरी सोपान में ध्यान और व्युत्सर्ग, ये योग की जो बात है। और इसीलिए जैन दर्शन के 3 महत्वपूर्ण शब्द हैं, मनोयोग, वचन योग और काया योग। 3 प्रकार की गुप्ति का विधान है। मनोगुप्ति,
वचन गुप्ती और काया गुप्ती। योग केवल आसन या व्यायाम ही नहीं है, योग बहुत बड़ा व्यापक शब्द है जैन दर्शन के अनुसार, और उसकी व्यापकता हम जब ध्यान और योग की प्रक्रिया से गुजरते हैं, वह भेद विज्ञान की अनुभूति। आत्मा भिन्न शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न शरीर भिन्न है, एक नहीं संजोना है मिट्टी से बना हुआ पर आखिर सोना सोना। जैसे सोना जब खादान से निकलता है वो मिट्टी से युक्त होता है, किंतु अग्नि से तप करके जिस प्रकार मिट्टी और स्वर्ण अलग होते हैं, योग के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा उसी तरह से वेद विज्ञान की जब अनुभूति होती है, शरीर भिन्न आत्मा भिन्न, ये भेद विज्ञान की अनुभूति, जिसे मैं कह सकता हूं सत्य का साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार की अवस्था तक हमें योग ले जाता है। इसलिए मैं फिर से कहूंगा कि योग केवल व्यायाम नहीं है, केवल आसन प्राणायाम नहीं है, यहां से तो केवल शुभारंभ है। इसलिए 3 शब्द, काय गुप्ती, काय गुप्ती के बाद वचन गुप्ती, मन गुप्ती, और तब जाकर के हम, जैसे पातंजलि के अंदर कहा या जैन दर्शन में, सभी का निष्कर्ष एक ही है। और जब वास्तव के अंदर हमारे जीवन में ज्ञान और योग सही प्रकार से गठित होता है, हमारे भीतर की तमाम नकारात्मकताएं खत्म होती है। जीवन में सकारात्मकता, पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच, विधायक चिंतन, ये दृष्टिकोण जो है योग के द्वारा उत्पन्न होता है। और जीवन में जब नकारात्मकता खत्म होती है तो हिंसा भी खत्म होती है। उसका जो रूट कॉज है उस पर प्रहार होता है। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर दुनिया से हिंसा को खत्म करना है, अहिंसा का तेजस्वी स्वरूप उजागर करना है, तो उसका माध्यम है, उसका रास्ता है, उसका मार्ग है, वह है योग और मेडिटेशन। योग और मेडिटेशन के द्वारा प्रासंगिक फल भी बहुत से हैं, और उन प्रासंगिक फलों के अंदर हमारा शरीर भी स्वस्थ बनता है। और हमारे ग्रंथों में कहा, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। मैं चूंकि धर्म के अध्यात्म के क्षेत्र का व्यक्ति हूं, इसलिए यह बात भी कहना चाहूंगा कि अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो हम धर्म की आराधना नहीं कर सकते। आत्म आराधना के लिए भी, धर्म की आराधना के लिए भी शरीर का स्वस्थ होना जरूरी है। और इसीलिए कहा, शरीर माध्यम खलु धर्म साधना। स्वास्थ्य ही नहीं, अगर हमें समृद्धि को भी हासिल करना है, स्वस्थ शरीर होगा तब ही वह समृद्धि को भी हासिल कर सकता है। इसलिए योग और ध्यान का संबंध हमारे स्वास्थ्य के साथ, हमारी समृद्धि के साथ, हमारे जीवन की पॉजिटिविटी के साथ, और जीवन की नकारात्मकता को खत्म कर, हिंसा को खत्म कर, एक अहिंसा का, शांति का, सद्भावना का, विकास की चर्चा होती है। किंतु विकास के लिए भी सोसाइटी में पीसफुल एटमॉस्फेयर चाहिए, और उस पीसफुल एटमॉस्फेयर को प्राप्त करने के लिए मैं अनेक बार कहता हूं कि सुख और शांति का संबंध पदार्थ और परिस्थिति से नहीं, हमारी मनस्थिति से है। और हमारी मनस्थिति को स्वस्थ बनाने का, हमारी मनस्थिति को संतुलित बनाने का
अगर कोई जरिया है तो वह है एकमात्र जरिया, वह है योग और ध्यान। और इसीलिए मैंने जैसा कहा कि निर्जरा के 12 भेदों को, तपस्या के 12 भेद, इनमें से प्रारंभिक 6 भेद को बाह्य भेद कहा और आखिरी के 6 भेद उन्हें आंतरिक तप कहा गया। और ध्यान और योग आंतरिक तप की कोटि के अंदर आते हैं। एक बार भगवान महावीर से गणधर गौतम ने प्रश्न किया कि बनते, व्यक्ति अनुप्रेक्षा से क्या प्राप्त करता है? तीर्थंकर महावीर कहते हैं कि गौतम, अनुप्रेक्षा के द्वारा व्यक्ति एक ही समय में 7 कर्मों को एक साथ नष्ट कर सकता है। जैन दर्शन के कर्मवाद के सिद्धांत के अनुसार 8 प्रकार के कर्मों का वर्णन मिलता है। उसमें से केवल एक आयुष्य कर्म को छोड़ करके 7 कर्मों को एक साथ नष्ट करने की क्षमता किसी में बताई तो तीर्थंकर महावीर कहते हैं वो अनुप्रेक्षा के अंदर है। बंधुओं और बहनों, ये ध्यान और योग की ताकत अध्यात्म के क्षेत्र में, और ये केवल मैं नहीं कह रहा हूं, 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर कह रहे हैं और वो मुक्ति का मार्ग तपस्या को बता रहे हैं। उस तपस्या के भी आंतरिक 6 भेद में आखिरी जो है वो ध्यान और विसर्ग, कायोत्सर्ग को स्थान मिला। आज हम देखते हैं दादाजी के मार्गदर्शन में, योग ऋषि बाबा रामदेव जी के मार्गदर्शन में, डॉक्टर एच.आर. नागेंद्र जी के मार्गदर्शन में, या चाहे अहिंसा विश्व भारती के अहिंसा योग और मेडिटेशन सेंटर के माध्यम से, हमने इस कोरोना काल में भी देखा। और मुझे ये कहते हुए सात्विक प्रसन्नता है कि जितने लोग सेंटर पर अभ्यास करने के लिए आते थे, अभी तक ऐसा एक उदाहरण नहीं मिला कि जो कोरोना से ग्रसित हुआ हो। क्योंकि हमारे इम्यून सिस्टम को, हमारी प्रतिरोधात्मक क्षमता को शक्तिशाली बनाने का माध्यम भी जो है वो योग के अंदर छिपा हुआ है। जिस समय हम प्राणायाम करते हैं, अनुलोम विलोम का अभ्यास करते हैं, भस्त्रिका करते हैं, ये सारे के सारे वे प्रयोग हैं जो हमारे शरीर की फेफड़ों की क्षमता, जो ऑक्सीजन को ग्रहण करने की है, उसको भी विकसित करते हैं और हमारे भीतर के इम्यून सिस्टम को भी मजबूत बनाते हैं। इस दृष्टि से कोरोना काल में, अभी हमारी बहन एकता जी चर्चा कर रही थी कि मुनि जी सदैव मास्क लगाते हैं। पहले मुझे अनेक लोग पूछा करते थे ये क्या लगा रखा है। आजकल सड़क पर जाए और ये नहीं लगाया हो तो पुलिस वाला पूछता है कि ये क्यों नहीं लगा रखा है। हमारे ऋषि मुनियों ने, महर्षि पतंजलि हो, भगवान महावीर हो या अन्य महापुरुष हो, उन्होंने सैकड़ों हजारों वर्ष पूर्व जिस सत्य का साक्षात्कार किया था, वे केवल आध्यात्मिक महापुरुष ही नहीं, महान मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक पुरुष थे। वैज्ञानिक लोग प्रयोगशालाओं में उपकरण के माध्यम से सत्य की खोज करते हैं और महर्षि पतंजलि जैसे, भगवान महावीर जैसे ऋषि मुनियों ने अपने शरीर को ही प्रयोगशाला बना डाला और उन्होंने जिस सत्य का साक्षात्कार किया वो हमारे सामने प्रस्तुत किया। उनके द्वारा प्रस्तुत योग का जैन धर्म में कितना प्राचीन रूप स्वरूप है। मुझे जब प्रथम बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को यूनाइटेड नेशंस में सन 2015 में
21 जून को संबोधित करने का अवसर मिला, मैंने निवेदन किया था कि जैन परंपरा में भगवान ऋषभ से लेकर भगवान महावीर तक जितनी भी प्रतिमाएं मिलती हैं वे सारी की सारी ज्ञान और योग की मुद्रा में मिलती है। कहीं पर वो कायोत्सर्ग की मुद्रा में है, कहीं पर पद्मासन की मुद्रा में है, कहीं पर वज्रासन की मुद्रा में है, कहीं पर अर्ध पद्मासन की मुद्रा में है। यानी कि ये योग हमारी हजारों वर्ष की प्राचीन महान विरासत है। आज उस विरासत को मुझे इस बात की खुशी है कि दादाजी के सानिध्य में, मार्गदर्शन में, दादाजी के निर्देश में जिस तरह से पूरी दुनिया में इसको ले जाने का प्रयास हो रहा है और यूनाइटेड नेशंस में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रस्ताव रखा और सैकड़ों देशों ने उसका समर्थन किया और आज पूरी दुनिया में योग और ध्यान के प्रति आकर्षण बढ़ता जा रहा है। खासकर इस कोरोना काल में अब लोगों को और अधिक समझ में आने लगा है कि अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हमें योग और ध्यान की दिशा के अंदर अपने जीवन में, अपनी जीवन की दिनचर्या में उसे स्थान देना जरूरी है। मैं जैन परंपरा की ओर से यह बात अवश्य प्रस्तुत करना चाहूंगा। एक सन्यासी के लिए ये विधान है कि वो कोई भी क्रिया करके, जैसे कि मान लीजिए बाहर नेचर स्कूल के लिए गया, लौट के आता है, सबसे पहले उसे कायोत्सर्ग करना होगा। दीक्षा के लिए गया, लौट के स्थान पर पहुंचता है, सबसे पहले कायोत्सर्ग करना होगा। यानी कि जीवन के अंदर वो एक ऐसा अंग दिनचर्या के अंदर जुड़ गया और निश्चित रूप से ये अपने आप के अंदर, क्योंकि जब तक जीवन में योग और ध्यान नहीं है हम सत्य का साक्षात्कार नहीं कर सकते, वेद विज्ञान की अनुभूति नहीं कर सकते और आत्मावलोकन करने का, आत्मचिंतन करने का, आत्म प्रतिलेखन करने का, जैन परंपरा में एक शब्द आता है प्रतिक्रमण, जो एक साधक के लिए दोनों समय प्रातः और संध्या में करने का एक विधि है उपासना की एक। लेकिन उसका जो मूल हार्द है वो हार्द यही है कि हम आत्मावलोकन, आत्मचिंतन, आत्म प्रतिलेखन। लेकिन मैं योग और ध्यान के क्षेत्र के साधकों को ये अपने अनुभव की कुछ बात भी बताना चाहूंगा। सभी लोग चाहते हैं कि हम मन पर नियंत्रित करें, मन को कंट्रोल में कर लें, किंतु जब सम्यक अभ्यास नहीं होता है और सीधा मन को कंट्रोल करने जाता है तो कई बार कठिनाई उत्पन्न होने पर पलायन भी कर जाता है साधक। मैंने एक युवक से पूछा, मेडिटेशन करते हो? उसने कहा गुरुजी पहले करता था। तो मैंने कहा अब क्या हो गया? बोले नहीं गुरुजी, जब पहले नहीं करता था सब कुछ मामला ठीक ठाक था, जब से मैं मेडिटेशन करने लगा हूं जो विचार कभी नहीं आते थे वो सारे उस समय आने लगे। बंधुओं, पलायन समाधान नहीं है। हमें इस विज्ञान को समझना होगा, इस तकनीक को समझना होगा। वर्षों से हम बाहर देख रहे हैं, हमारी इंद्रियां निरंतर बाहर की ओर भ्रमण करती हैं और जब उसे हम नियंत्रित करने जाते हैं वर्षों के भीतर के वो संस्कार प्रतिक्रिया करते हैं और ऐसे के अंदर हम पलायन करें, उसे छोड़ दें, ये समाधान नहीं है। समाधान क्या है? सबसे पहले मैंने 3 शब्दों की जो बात कही, काय गुप्ती, वचन गुप्ती और मन गुप्ती। काया योग, वचन योग और मनोयोग। हम काया से चलें और काया को साधने के लिए यह आसन प्राणायाम काया को साधने का महान उपक्रम है। और जब हमारी काया सध जाती है तो हम 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा भी, मैंने ऐसे ऐसे साधक देखे हैं अपने जीवन में जो पद्मासन के अंदर
जैन परंपरा में एक उपासना का एक उपक्रम है जिसे कहा जाता है सामायक। 48 मिनट का कालखंड पूरा सामायिक जो है पद्मासन में पूर्ण कर लिया जाता है। जब काया सद जाती है और काया नहीं सदती है जब तक, तब तक व्यक्ति चंचल बना रहता है, और चंचलता बाधा है विकास के अंदर। सफलता का मूल मंत्र है एकाग्रता। काया सधने के बाद में दूसरा है वचन योग। वचन गुप्ति, चंचलता की मैंने चर्चा की, उस चंचलता को विराम के अंदर वचन गुप्ति, वचन योग का बड़ा महत्व। मैं अगर आपसे कहूं सरल प्रयोग कुछ योग की भाषा के, हमारे मुंह के अंदर जीभ की ये स्थिति है इस तरह से, उसे उठा के तालू की ओर लगाना, इसे खेचरी मुद्रा कहा गया। विचार कितने ही चंचल हो, आप 2 क्षण के लिए खेचरी मुद्रा का प्रयोग कीजिए, लगेगा कि विचारों के वहीं पर विराम मिल गया है। जब हमारी स्वर पेटी पर प्रेशर आता है तो खेचरी मुद्रा हमारे स्वर यंत्र को, स्वर पेटी को साधने का और चंचलता के विराम का अचूक उपाय है। काया गुप्ति के द्वारा काया को साधे, वाणी और वचन को साधे, और तब आती है मन गुप्ति की, सीधा मन पर। लेकिन हमारे अनेक कवियों ने भी मन को बहुत कोसा। मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर, मन के मते न चालिए, पलक पलक मन और। जबकि बेचारा मन दोषी नहीं है। मन से भी परे जो है वो है हमारा चित्त। मनोवैज्ञानिक फ्रायड ने मन पर बहुत चर्चा की। कार्ल गुस्ताव युंग ने उससे आगे साइक की चर्चा की, चित्त की। वास्तव के अंदर मैं आपसे अगर पूछूं, ये मेरे सामने पंखा है, क्या पंखा चंचल है? पंखा स्वतः चंचल नहीं है। पंखे को जब विद्युत का प्रवाह मिलता है तब वह चलायमान होता है। हमारा मन भी जब उसको चित्त की रश्मियों का प्रभाव मिलता है, और इसीलिए मन को साधने के लिए भी हमें साइंटिफिक प्रक्रिया को समझने की जरूरी है। पहले हम तन को साधें, वाणी को साधें और फिर मन को साधें, और इन तीनों को साधने के अंदर योग हमारा बहुत बड़ा सहायता करता है, सहायक बनता है। और इसीलिए योग का साधना के क्षेत्र में भी महत्व है। और साथ साथ में मैं कहना चाहूंगा, अगर हम मेडिटेशन की बात करें, केवल मैं डीप ब्रीदिंग की अगर बात करूं, एकाग्रता सक्सेस की है। मैं ये कह सकता हूं कि जितनी जितनी एकाग्रता उतनी उतनी सफलता, जितनी जितनी चंचलता उतनी उतनी विफलता। और उस सफलता की जो कुंजी है, जो की है, कंसल्टेट ऑफ माइंड, और उसको साधने के लिए भी डीप ब्रीदिंग का प्रयोग जो है वो रामबाण औषधि साबित हो सकता है। तो ध्यान के द्वारा अलग अलग प्रयोगों के अलग अलग परिणाम हैं। किसी को गुस्सा ज्यादा आता है, मैं एंगर मैनेजमेंट के जब शिविर लगाता हूं, डीप ब्रीदिंग के साथ कलर मेडिटेशन का प्रयोग भी, क्योंकि कलर का, रंगों का भी महत्व है हमारे जीवन में। और हम लोग ज्योति केंद्र पर ये पिट्यूटरी पिनियल की जो जगह है जहां बहनें बिंदी लगाती हैं, सफेद कलर के ध्यान के साथ डीप ब्रीदिंग के प्रयोग से चंचलता पर नियंत्रित किया जा सकता है, एकाग्रता को साधा जा सकता है। अलग अलग प्रयोग है। मान लीजिए किसी को तनाव ज्यादा है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, रिलैक्सेशन का प्रयोग है, उस तनाव पर काबू पाया जा सकता है। किसी को नशे की आदत है, कान के आसपास प्रयोग कराते हैं ध्यान का, क्योंकि हमारे भीतर का ये ग्रंथि तंत्र
जिसके हार्मोन्स हमारे नाड़ी तंत्र में मिलकर के हमारे समग्र जीवन को प्रभावित करते हैं, योग के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा हम ग्रंथि तंत्र के स्राव को संतुलित करके स्वस्थ जीवन को प्राप्त हो सकते हैं। नशे की आदत, मैंने ऐसे सैकड़ों प्रयोग किए हैं, मेरे सामने उदाहरण है। नशे और गुस्से के कारण से जिनके घर परिवार नरक बन रहे थे, किंतु प्रयोग से गुजरने के बाद में जब वो घर पहुंचे, घर वालों को विश्वास नहीं किए वही व्यक्ति है क्या? क्योंकि भीतर के ग्रंथि तंत्र के हार्मोन्स में बदलाव आता है और फिर उसके सामने तो वो उससे जो है नशा कर नहीं पाता है। ये भीतर से बदला, और ये भीतर का बदलाव जो है ये साइंटिफिक प्रयोग है। मैंने प्रारंभ में कहा कि हमारे महापुरुष महान वैज्ञानिक थे और उन्होंने अपने शरीर पर प्रयोग करके जिस सत्य की खोज की और हमारे सामने प्रस्तुत किया, आज अपेक्षा है कि उसको हम दुनिया भर में विश्व के कल्याण के लिए उन महान प्रयोगों को, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे दादी के मार्गदर्शन में रिसर्च भी चल रही है, हमारे योग ऋषि बाबा रामदेव जी के मार्गदर्शन में, हमारे डॉक्टर आचार्य नागेंद्र जी के मार्गदर्शन में, निश्चित रूप से ये समूची मानव जाति के हित और कल्याण के लिए वसुधैव कुटुंबकम की भावना के तहत, सर्वे भवन्तु निरामया की भावना के तहत, सबके सुख के लिए, सबके आरोग्य के लिए, तो मैं फिर से इस बात पर बल देना चाहूंगा, ये 100 दिन का योग का कार्यक्रम और बहुत अच्छा निर्णय दाजी ने लिया कि हम केवल एक दिन के लिए नहीं, एक लंबी ऐसी श्रृंखला और पूरे वर्ष ये कार्यक्रम चले, तो मैं समझता हूं निश्चित रूप से इससे पूरा समाज लाभान्वित होगा, पूरी मानवता लाभान्वित होगी। और मुझे लगता है कि व्यक्ति निर्माण का, लोग समाज निर्माण की बात करते हैं, राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं। मैं जिन गुरुजी के हाथों दीक्षित हुआ, वो कहा करते थे, सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। आज सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने वो है व्यक्ति निर्माण का, और व्यक्ति निर्माण के लिए सबसे साइंटिफिक अगर कोई प्रक्रिया है तो वो केवल प्रक्रिया है ज्ञान और योग की, क्योंकि वो हमारे रूट कॉज को, अभी एकता जी ने जैन धर्म की चर्चा करते हुए अहिंसा की, हिंसा की बात कही। मैं कहना चाहूंगा कि अगर हमें दुनिया से हिंसा और आतंक को भी खत्म करना है तो हमें उसका रूट कॉज जो है, उसका रूट कॉज हमारे मस्तिष्क में मौजूद है। यूनेस्को का संविधान भी इस बात को एक्सेप्ट करता है कि युद्ध मैदान में बाद में लड़ा जाता है, पहले मस्तिष्क में उत्पन्न होता है। और यह साइंटिफिक सच है कि हमारे इसी मस्तिष्क में एनिमल ब्रेन भी मौजूद है, जहां पर पार्श्विक वृत्तियां जन्म लेती है। तो हमारे इसी मस्तिष्क में नियोकॉर्टेक्स परत भी है, जहां पर मानवीय और दैविक वृत्तियां जन्म लेती है। आज अपेक्षा है एनिमल ब्रेन को तिरोहित किया जाए और नियोकॉर्टेक्स परत को जगाया जाए। और ये अब साइंटिफिक सिद्ध हो चुका है, मेडिकल साइंस भी इस बात को एक्सेप्ट करता है कि अगर स्टूडेंट का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ज्यादा सक्रिय है या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, या तो वो हीन भावना में चला जाएगा, दब्बू रह जाएगा, या इतना आक्रामक बन जाएगा
जैसे वर्जीनिया की यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट ने 32-33 स्टूडेंट को शूट करके रख दिया। अपेक्षा है संतुलित और सर्वांगीण विकास की, और उस संतुलित और सर्वांगीण विकास के लिए हमें प्रारंभ से ही एजुकेशन प्रणाली में इस प्रकार के कार्यक्रम इंट्रोड्यूस करने होंगे। प्राइमरी एजुकेशन से ही अगर ऐसा किया गया, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि हिंसा और आतंक की मूल जड़ पर वो प्रहार होगा, और ऐसे के अंदर एक संतुलित और सर्वांगीण व्यक्तित्व, आज एजुकेशन के द्वारा डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, वकील बन रहे हैं, किंतु अच्छे इंसान का निर्माण कैसे हो, और अच्छे इंसान के निर्माण के लिए, व्यक्ति के निर्माण के लिए योग और मेडिटेशन से अधिक और कोई उपयोगी उपक्रम नहीं है। ये साइंटिफिक उपक्रम है जो हमारे भीतर अपने इमोशंस और पेशेंस पर कैसे नियंत्रण रखा जाए। एक छोटी सा व्यंग है, एक व्यक्ति गाड़ी लेके जा रहा था, ट्रैफिक पुलिस वाले ने देखा कि गाड़ी के लाइट ही नहीं है, रोकने की कोशिश की कि भैया गाड़ी कहां दौड़ा रहे हो, लाइट नहीं है, रात्रि का समय है। ड्राइवर ने कहा बीच में से हट जा, नहीं तो मारा जाएगा, इस पे ब्रेक भी नहीं है। मैं पूछना चाहूंगा कि वो गाड़ी कितनी खतरनाक होगी जिसके लाइट भी ना हो और जिसके ब्रेक भी ना हो। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि वो इंसान कितना खतरनाक होगा जिसका अपना इंट्यूशन पावर जागृत नहीं है, जब अपने इमोशंस और पेशेंस पर कंट्रोल नहीं है। योग के द्वारा, ध्यान के द्वारा आप अपने इमोशंस पर, अपने आवेग और संवेग को संतुलित बना सकते हैं। और आवेग और इमोशंस अगर संतुलित नहीं होते हैं, हमने देखा है कि साइंटिस्ट की सही समय पे पदोन्नति नहीं हुई और इमारत से कूद करके जान दे दी। एक डॉक्टर भी जब नशा करता है, हम सोचने के लिए मजबूर होते हैं कि क्या हमारे एजुकेशन ने ये नहीं सिखाया। मैं यहां पर बल देना चाहूंगा, हमारे विकास के 4 उपक्रम हैं: शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, मानसिक विकास और भावात्मक विकास। आज फिजिकल और इंटेलेक्चुअल विकास पर ध्यान दिया जाता है, किंतु मेंटल डेवलपमेंट एंड इमोशनल डेवलपमेंट, उसके लिए जिस उपक्रम की जरूरत है, और वो मेंटल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट के लिए योग और ध्यान, तो हमारी ये महान प्राचीन विरासत, ध्यान और योग और आधुनिक साइंस दोनों के मिश्रण से निश्चित रूप से हम दुनिया को अधिक खुशहाल बना सकते हैं। योग के द्वारा ये केवल एक सन्यासी के लिए नहीं, केवल एक साधक के लिए नहीं, बल्कि मैं कहना चाहूंगा स्वस्थ समाज की संरचना के लिए, हेल्दी सोसाइटी के निर्माण के लिए, हेल्दी व्यक्ति के निर्माण के लिए और वसुधैव कुटुंबकम की भावना को साकार करने के लिए अगर कोई माध्यम है तो वो माध्यम योग है, वो माध्यम ध्यान है। और ये हमें विभिन्न महान पुरुषों ने बताया है, सिखाया है। आइए हम सभी दाजी के कुशल मार्गदर्शन में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आयुष मंत्रालय के इस सपने के अनुरूप, यूनाइटेड नेशंस के और इन सब के सहयोग से महान ऋषियों के मार्गदर्शन के अंदर हम इस कार्य को आगे बढ़ाएं। और उसमें अहिंसा विश्व भारती अहिंसा योग मेडिटेशन सेंटर अपनी ओर से हर तरह की सक्रिय सेवाएं देने के लिए सदैव तत्पर रहेगा, जिससे कि अच्छे व्यक्ति का निर्माण हो, अच्छे समाज का निर्माण हो और अच्छे सुखी और समृद्ध विश्व का निर्माण हो। मैं अपनी ओर से अपील करना चाहूंगा, एक जैन धर्म का सन्यासी होने के नाते, अहिंसा विश्व भारती का फाउंडर प्रेसिडेंट होने के नाते, कि हम सभी लोगों को गाइडलाइन का पालन करते हुए आयुष मंत्रालय की और योग को प्राथमिकता के साथ जीवन में स्थान दें, ध्यान को, आयुर्वेद को, और निश्चित रूप से इनके द्वारा जो है हम कोरोना की महामारी को नियंत्रित कर सकते हैं, उससे अपना बचाव कर सकते हैं।
इसलिए मैं करबद्ध अपील करता हूं कि हम घर पे रहें, योग करें, मास्क का प्रयोग करें, 2 गज की दूरी को बनाए रखें, स्वच्छता को जीवन में स्थान दें। तो आइए ध्यान और योग के द्वारा हम घर पर रह करके योग करें, निरोग करें और दुनिया को और अपने को स्वस्थ बनाएं। ओम